Yo guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel again. So as you know that in the previous video we have completed the version control module, and in today's video we're going to be starting a new chapter with you guys, that is the workflow analyzer in Studio. Guys, it's pretty important chapter, but at the same time हमसे जल्दी भी complete करेंगे workflow analyzer को, because इसमें इतना कुछ है नहीं. It is just a tool to analyze that your workflow is being corrected, correctly working or not, all those naming conventions, everything, rules are working or not. Okay, chलिए. So we'll directly jump into the academy. Introduction to the workflow analyzer in Studio. Good. चलिए. So here is visible to you now. चलिए. So let's see what is workflow analyzer. मैं आपको एक डेमो करके दिखाऊंगा inside the UiPath Studio as well. चलिए. Workflow analyzer uses a set of rules to check for various inconsistencies unrelated to project execution. Means अगर आपके प्रोजेक्ट में अगर कोई inconsistency है, if we have an inconsistency inside a project, it will be checking it for that. ठीक है. The rules are based on automation best practices and take into consideration variable and argument naming, empty sequence or workflows, package restrictions, and so on. So if we have a wrong variable and argument naming as well, or empty sequences or workflows, package restrictions अगर आपके पास कुछ है तो वो आपको बताएगा. ठीक है. चलिए. So workflow analyzer is a static code analyzer that ensures your project meets high quality and reliability standard. Whenever you are pushing your code to the production or to a remote repository or publishing a code to the orchestrator, तो वो आपको वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी वर्कफ्लो एनालाइजर की. तो जब भी आप करें वर्कफ्लो एनालाइजर के साथ, इट विल बी एनालाइजिंग योर होल प्रोजेक्ट एंड देन पुशिंग इट इनटू द गिट, TFS, SVN, ऑर्केस्ट्रेटर और आपका प्रोडक्शन पे. ठीक है. चलिए. When triggered, the workflow analyzer uses the configured rule set to check the project or workflow for inconsistencies without executing the project. It won't be executing the project, but it will be only checking the project for the inconsistencies. Okay. It logs the errors found in the error list panel under the rule action, error, warning, info, or verbose. The rules are based on UiPath automation best practices. But generally, you don't have to create your own rules inside of workflow analyzer, because इसके अंदर पहले से ही rules बने हुए होते हैं जो आपके organization के अंदर sufficient रहेंगे. But if you want, you can also create it with the help of UiPath activities.api packages as well. It will be also working in your continuous integration, continuous deployment pipeline, right? Tell you. So guys, there are three type of mode to deploy the workflow analyzer. One is before run, whenever you are running any project, before run. One is before publish, whenever you will be publishing a project to the orchestrator, then you can automatically run the workflow analyzer. Third is the enforce analyzer before push/check-in. Means whenever you are pushing a project to the Git or any remote repository, then it will be already automatically running, right? And to enable either of these options, access home settings design. Let's see it in action now. Before jumping into the rule categories, I'll quickly create a process. Just say chapter 118. We have come a long way, guys, from chapter 1 to chapter 118. Thank you so much for being here with me. Work flow analyzer, right? We won't be, let's see, we won't be creating any more demo, any more spell, because I think एक में हो जाना चाहिए, right? But we have some advanced practices as well, or best practices as well, advanced configuration of the workflow analyzer. Let's see. Guys, it's always a good practice to remove the dependency which you have not used. Okay. For example, I need to use an assign activity, like I need to assign a variable to a variable link, right? Some value to a variable. You can say that hi, I am learning workflow analyzer, like this. And over here I said that we know that how to create the string variable correctly, but just for the instance we'll be creating an error over there, right? Not an error, it will be a workflow analyzer error, right? So what we can do, we can just directly go over there and
use some gibberish data, I can use a string like this. String, okay. We can use a string. Can use string like this. For example, and you know that जब भी हम वेरिएबल बनाएंगे बाय डिफॉल्ट आपका स्ट्रिंग के अंदर ऑटोमेटिक जाके क्या होगा, सेव हो जाएगा. ठीक है, व्हाट वी कैन डू, यहाँ मैंने ये वेरिएबल आपका सेव कर लिया है आपके स्ट्रिंग के अंदर. इस वेरिएबल के अंदर इसका string है. ठीक है, ओके. नाउ इफ आई जस्ट रन, देखिए ये आपका एनालाइज फाइल है. ये बस जो इट्स विद स्टेथोस्कोप लोगो. स्टेथोस्कोप होता है जो डॉक्टर वेयर्स, राइट, डॉक्टर साहब लोग पहनते हैं. वैसे यहाँ पे एनालाइज फाइल का निशान है. इट विल बी एनालाइजिंग अ फाइल. अगर आप इस पर क्लिक करेंगे इट विल बी डायरेक्टली एनालाइजिंग द फाइल. देखिए, log message not used in workflow main and activity assign has a default name. Let's see, यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ assigning value to a variable, right? And now if I'll run it, कह रहा है minimum log message not used in the workflow. So it, according to it, we have to use a log message always inside of workflow main to know that अभी हमारा step क्या हो रहा है. तो let's see, यहाँ पे हम देख लेते हैं लॉग मैसेज. ठीक है, यहाँ हम डाल देंगे इनिशियलाइजिंग द वैल्यू ऑफ द वैल्यू टू द वेरिएबल. लेट्स सी नाउ, activity log message has a default name ahead. Let's see, logging like this कर लेते हैं हम लोग. You can see that we don't have any errors over there. यहाँ हमारे पास कोई एरर नहीं है क्योंकि आई थिंक इन्होंने यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन वाला अभी ऑन नहीं किया है. बाय डिफॉल्ट वी हैव टू चेक इनसाइड द फाइल, राइट. लेट्स सी, इफ आई गो टू द वर्कफ्लो एनालाइजर सेटिंग्स ओवर हियर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वर्कफ्लो एनालाइजर सेटिंग्स. तो यहाँ हमें जो कोड देखना है वो NMG नाम का देखना है. वाई? क्योंकि इट विल बी एन NMG कोड, नेमिंग कोड ओवर देयर. ठीक है, NMG. ये देखिए वार्निंग आएगी यहाँ पे. लेट्स सी हमारे पास आई है नहीं आई है. डोंट हैव एनीथिंग, राइट. when we have one, expand to see details, A. Let's see, this counter gathers stats used on activities per workflow, including a number of activities per each file and the branching activities over. So it's not giving me the any NMG error over there. So what I have done again, guys, I have changed the variable name and now it is giving me the warning over there. If I click on analyze file, you can see that we have a variables naming convention error over there, right? So NMG1, if I'll click on this, it's a good thing to, if you don't know, you can directly click on this and ये आपको लेके जाएगा documentation part पे जहाँ आप देख सकते हो कि ये क्या है. Variables in a project should follow a specific naming convention to make it easy to understand the purpose of the variable to maintain it. This is being defined by a default regex expression over there. dt है, a to z है, तो ये आपको बता रहा है कि यहाँ पे dt होना चाहिए, कैपिटल A to Z हो सकता है, स्मॉल a to z हो सकता है एंड ऑल. तो यहाँ पे इट इज गिविंग यू अ वार्निंग ओवर देयर. अगर हम यहाँ पे क्या कहते हैं, इसको ऐड कर देंगे a to z एंड a to z कैपिटल में इसके अंदर, तो ये क्या करेगा, ये रूल आपका अगेन रिकॉग्नाइज करेगा हेलो वंडरफुल वर्ल्ड एज अ वैलिड वेरिएबल नेम ओवर देयर, राइट. इट्स वर्कफ्लो एनालाइजर, इट्स नॉट नेसेसरी टू रन बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू रन ऑलवेज व्हेनेवर यू आर पुशिंग अ कोड टू द प्रोडक्शन. कभी आपसे कुछ छूट जाता है बट इससे वो नहीं छूटेगा, ठीक है, इट वोंट बी लीविंग इट. सो देखिए यहाँ पे आ गया. अब अगर मैं इसको चेंज करूंगा, नाउ इफ आई विल से str एंड यहाँ मैं लिख दूंगा var और str string, or I can say str var like this. Let's see. So now you see अब वो error हमारा चले गया है, right? This thing is not giving me any error over there. ठीक है, अच्छा. अब अगर मैं ऐसे करता हूँ message box and I'll say str var like this. Now I will, if I'll analyze my file, so now also it is saying activity message box has a default name, no worries. We'll say printing the
value of the variable like this. Analyzing again, we have only and only have one error over here. File activity stats. The counter gathers stats on used activities per workflow, including the number of activities per each file and the branching activities over there. So it is just a counter which will be holding the statistics of the used activities per वर्क कितनी एक्टिविटी आपकी यूज हो रही है. इट्स जस्ट अ काउंटर ओवर देयर, इट्स नॉट एन एरर. ठीक है, इट्स ए इन्फो मैसेज, यू कैन से इन्फॉर्मेशन के अंदर है हमारा ये, राइट. एक्टिविटी 3 है यहाँ पे, इट्स जस्ट अ काउंटर. अगर आप चाहते हो उसको डिसेबल भी कर सकते हो. कैसे मैं आपको दिखाता हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डू इट लाइक दिस. ठीक है, आई गो इनसाइड द वर्कफ्लो एनालाइजर सेटिंग्स एंड दैट वाज ANA, राइट. फाइल एक्टिविटी स्टार्ट्स इन्फो इसको मैं रिमूव भी कर सकता हूँ. ओके, नाउ इफ आई एनालाइज द फाइल, यू गाइस कैन सी दैट यहाँ पे मैं कोई भी किसी भी टाइप का एरर नहीं आ रहा है. राइट, तो ये आपको कहीं समझ में आना चाहिए कि वेन एवर यू हैव एनी एरर इनसाइड द वर्कफ्लो एनालाइजर फाइल, सो एनालाइजर, तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू ऑलवेज चेक दोस एंड रेक्टिफाई देम. ठीक, हमें पता है नेमिंग कन्वेंशन कैसे करनी, तो हमें पता है. किसी को नहीं पता है, दैट कैन बी अ प्रॉब्लम, राइट. ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द नेमिंग रूल्स कैटेगरी. तो जो भी नेमिंग रूल्स कैटेगरी है उसकी आईडी होगी NMG. ऑल दोस टाइप ऑफ नेमिंग रूल्स आर हेयर, रूल्स आर हेयर, राइट. वर्कफ्लो एनालिसिस सेटिंग्स के अंदर जाएंगे हम लोग. NMG देखते हैं, ये रहा. स्ट्रेट फॉर्म वन वी हैव वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन. वार्निंग दिखाएगा, वी कैन आल्सो चेंज इट एज वर्बोस एरर इन्फो एंड वार्निंग, राइट. अगर मैंने आर्गुमेंट्स के अंदर गलती है तो वो भी बता देगा. तो NMG मीन्स नेम ओवर देयर. ठीक है, चलो, प्रीटी सिंपल गाइस, सब कुछ आपको दे रखा है कैट में. इट्स नॉट यू नो रॉकेट साइंस, राइट. चलिए, डिजाइन बेस्ट प्रैक्टिसेस. रूल्स इन दिस कैटेगरी कंटेन द DBB कोड इन देयर आईडी. दिस कैटेगरी रेफर्स टू द रिक्वायरमेंट्स फॉर एंश्योरिंग अ प्रोजेक्ट मीट्स अ जनरल सेट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस. मतलब अगर आपके पास आर्गुमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, वो भी नहीं होने चाहिए. एम्प्टी कैश ब्लॉक आपने कुछ नहीं डाला है उसके अंदर, वो भी गलत है. मल्टीपल फ्लोचार्ट लेयर्स, मतलब अगर आपकी लेयर्स हैं फ्लोचार्ट की बनी हुई बहुत सारी, मल्टीपल हैं, तब. अनडिफाइंड आउटपुट प्रॉपर्टी, आउटपुट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं अनडिफाइंड है वहाँ पे. कुछ एम्प्टी वर्कफ्लोज हैं. परसिस्टेंस एक्टिविटी, अगर आप लॉन्ग रनिंग वर्कफ्लोज यूज़ कर रहे हो, आपने परसिस्टेंस एक्टिविटी यूज़ की है नहीं की है, इट विल बी चेकिंग एवरीथिंग, राइट. ऐसे यहाँ पे और भी है हमारे पास रूल्स गाइज. यहाँ पे है प्रोजेक्ट एनाटॉमी रूल्स है, राइट. इट विल बी कोड ऑफ ANA. मेंटेन एंड रीडेबिलिटी कोड, रीडेबिलिटी रूल्स, इट हैज़ अ कोड ऑफ MRD, राइट. यूजेज रूल्स हैं USG. परफॉर्मेंस है, रीयूजेबिलिटी रूल है हमारे पास यहाँ PRR. रिलायबिलिटी रूल REL. सिक्योरिटी रूल SEC. ठीक है, कितना आपका सिक्योर स्ट्रिंग का यूज हुआ है नहीं हुआ है, इट विल बी चेकिंग ईच एंड एवरीथिंग ओवर देयर, राइट. सो आप देख सकते हो यहाँ पे इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं. एक वर्कफ्लो एनालाइजर के क्या कंपोनेंट्स होते हैं देखते हैं. तो ईच रूल हैज एन ID, नेम, डिस्क्रिप्शन, रिकमेंडेशन, स्कोप एंड डिफॉल्ट एक्शन. ये देखते हैं हम लाइव यहाँ पे जाके. तो जो रूल है हमारे पास, ठीक है, उसके अंदर क्या होगी, एक होगी ID. ये है आपकी ID पूरी. जो ये ST है, ST मीन्स इट इज अ स्टूडियो रूल. स्टूडियो के अंदर रूल बनाया गया है. ठीक है. ANA मीन्स ये एनालाइजिंग रूल है आपका. जो ANA जो उसका प्रीफिक्स है, और 6 मीन्स 6 नंबर का आपका कोड है. जैसे मैं बोलूँगा इन NMG मीन्स नेमिंग वाला रूल है. ठीक है, नेमिंग कन्वेंशन में कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे वो रूल आपका काम हो रहा है. यहाँ आप देख सकते हो, ऐसा नहीं है. ST NMG -001 make sure all the variables following the naming convention, learn more. ठीक है, तो यहाँ पे हम नेमिंग कन्वेंशन को ऐसा नहीं कि हम चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. अगर मैं यहाँ पे कोई और नेमिंग कन्वेंशन रख दूँ तो वो कुछ और मुझे बताएगा. ठीक है, मतलब वो कुछ और मुझे उस तरह से एरर देगा, कोई और एरर आएगी वहाँ पे हमेशा, राइट. सो दिस इज इट गाइस, प्रीटी सिंपल. एंड इसके हम कंपोनेंट्स देख रहे थे. दिस इज द ID. ये ID है इसकी. ठीक है, रिकमेंडेशन, क्या रिकमेंडेशन होनी चाहिए आपके पास, जो मतलब ये आ गया आपके पास रिकमेंडेशन. यहाँ पे रिकमेंडेशन है, राइट. लेयर काउंट कितनी है, सम रूल्स प्रॉपर्टीज विच यू हैव मॉडिफाइड लाइक चेंजिंग द लेयर काउंट फॉर मल्टीपल फ्लोचार्ट लेयर्स, चेंजिंग द रेजेक्ट्स फॉर द रेगुलर एक्सप्रेशंस फॉर द वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन, और चेंजिंग द मैक्सिमम अलाउड नंबर ऑफ द कैरेक्टर्स फॉर वेरिएबल नेम्स, राइट. सो वी हैव अ नेम. क्या नेम होना चाहिए, ऐसे मल्टीपल फ्लोचार्ट लेयर्स का नेम है. स्कोप, कौन से स्कोप में होना चाहिए आपका वाला जो है ये
क्या कहते हैं, वर्कफ्लो एनालाइजर का कंपोनेंट है, कौन से स्कोप के अंदर होना चाहिए, राइट। डिफॉल्ट एक्शन, व्हाट विल बी द डिफॉल्ट एक्शन, जब हमें मिलेगा वो वाला एक्टिविटी, जब उससे मैच हो जाएगा कि ये एक्टिविटी रॉन्ग आ रही है, ये एक्टिविटी नेमिंग कन्वेंशन है, कुछ और दिक्कत है, तो क्या डिफॉल्ट एक्शन होना चाहिए वो बता रहे हैं, राइट। ठीक है, अच्छा इसके रिजल्ट्स कहाँ मिलेंगे हमें, बैकस्टेज व्यू, सेटिंग्स, डिजाइन एंड एनेबल द ऑप्शन एक्सपोर्ट एनालाइजर रिजल्ट्स। वन मोर थिंग गाइस, मैं आपको बताना भूल गया था, जब भी हम होम के अंदर जाके सेटिंग्स डिज़ाइन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका बिफोर पब्लिश यूज़ कर सकते हैं, बिफोर रन यूज़ कर, जब मैं रन करूँगा उसके पहले पहले क्या होगा, हमेशा वर्कफ्लो एनालाइजर चलेगा। और पुश स्लैश चेक इन मीन जब मैं रिमोट रेपो में पुश करूँगा डेटा अपना, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या होगा, पहले वर्कफ्लो एनालाइजर रन होगा, उसके बाद जाके ही वो पुश होगा, राइट। एंड यहाँ है एक्सपोर्ट एनालाइजर रिजल्ट्स, तो मैं इसको येस कर दूंगा। When this option is enabled, all the workflow analyzer result will also be exported to a local file. Local कहाँ पे होगा, local यहाँ पे होगा guys, यहाँ पे होगा डॉट लोकल डॉट एनालिसिस सब फोल्डर। तो ये क्या है, फाइल आपकी हिडन फाइल होती है, ठीक है। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यू कैन सी दैट यहाँ पे इसके अंदर हम जाएंगे, अभी मैंने हिडन फाइल ऑन कर रखी है, व्यू पे जाके शो पे जाके आप हिडन आइटम्स को देखिए, अब बंद हो गया, राइट, नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे शो हिडन आइटम्स। तो लोकल फाइल मिल जाएगी। अब जब मैं इसको चलाऊंगा तो इट विल बी ऑटोमेटिकली एक्सपोर्टिंग द वर्कफ्लो एनालाइजर रिजल्ट्स। व्हाई, बिकॉज मैंने यहाँ पे लिखा वर्कफ्लो एनफोर्स एनालाइजर बिफोर रन एंड एक्सपोर्ट द एनालाइजर रिजल्ट्स एज वेल, राइट। We don't have any option to save, so I'll just save this, and now if I'll just run it, see it did ran the analyzer as well, I guess. It automatically ran the analyzer, okay, and we have the results. You can see in the local, let's see in the local part we have the results or not. Local, and it should be there inside the local analysis subfolder of the project folder. Okay, let's see, we don't have any analysis folder over here, I guess. I think it didn't ran or what. Okay, we don't have any analysis folder because we are not having any results over here. We don't have zero results, right? So let's do one thing, let's change it. Okay, variable string like this. Let's see now, are we getting any results? Yeah, we are getting the naming convention error over there, or the info like this. Okay, so now if I'll run it, okay, let's see. Do we have it or not? Let's see. Local analysis. Yeah. So as you see that guys, we have now the results, because previously we are not getting any errors or any warnings over there. तो वो हमारे पास नहीं मिला, जब मिलेगा तभी करेंगे obviously. Let's see. Okay, so it is a type of a JSON format. ये JSON format है हमारे पास यहाँ पे. Let's see guys, यहाँ पे है ओके, प्रीफिक्स डेरिवेटिव वेरिएबल्स, नो, वेरिएबल लेंथ एक्सीडेड नहीं है ये भी आपके पास, वेरिएबल डेप्थ, तो यू कैन सी दैट वी हैव ऑल दोस एरर्स ओवर देयर, राइट। तो जिसमें इसने किया होगा ये वही बताएगा हमें। तो वी वर हैविंग एरर एज नेमिंग nmg1, लेट्स सर्च इट, st nmg1, and we can say that user value is null, default value is, so you go see that we have this error over there as well, right? We have all the data, ठीक है, हमारे पास पूरा डेटा है, we have results as well over there, right? We have a third file as well. You can see that it will be generating the files whenever we will be running the project over there, right? चलिए, इतना पार्ट आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। जो फाइल है,
जो फाइल है आपकी, वो मैंने अभी आपको दिखाया, वो क्या करेगी, रूल आईडी बताएगी आपको, रूल नेम, पैरामीटर, सीवियरिटी, कितनी सीवियरिटी है, राइट, कितनी उस एरर की सीवियरिटी है, और एरर्स डिस्क्रिप्शन क्या है, वो हिडन है, मैंने आपको बताया, वी कैन ऑलरेडी चेक द व्यू एंड हिडन आइटम्स टू एनेबल द डॉट लोकल फाइल, राइट। एंड गाइस वन मोर थिंग, एनालिसिस फाइल आपकी तब तक नहीं शो होगी, तब तक वो रिजल्ट आपका नहीं देगा, और भाई जब कोई चीज़ नहीं है तो वो क्यों शो होगी, राइट, प्रीटी सिंपल। ओके, लेट्स सी what are the capabilities of workflow analyzer. So it is saying enables us to edit, disable and enable the rules from storage. Yes, अभी हमने एक रूल को डिसेबल भी किया था. Enables enables us to manage errors and warning in the error list panel. Yes. Enables us to run validation and analysis at file or project level. Yes. Enables us to dig out. No. नहीं. So guys, you can see that we were 100% right, because it also enables us to run validation and analysis at the file or project level. ठीक है, तो गाइज ये भी कवर होता है, इन्होंने यही बताया हुआ है सेम. तो इन द नेक्स्ट पार्ट वील बी सीइंग सम बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड डू अ प्रैक्टिस एज वेल, राइट. इन दिस वीडियो के लिए इतना ही. नेक्स्ट पार्ट में वील बी डूइंग सम बेस्ट प्रैक्टिसेस. क्या बेस्ट प्रैक्टिस है वर्कफ्लो एनालाइजर की आपकी, ठीक है, कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं, इट्स प्रीटी सिंपल, दैट्स इट. एंड यहाँ पे वील बी यूजिंग अ प्रैक्टिस, विल बी डूइंग अ प्रैक्टिस ओवर द, जो प्रैक्टिस हमें दी गई है एकेडमी के द्वारा. एंड उसके बाद हम कोई एडवांस फीचर डिस्कस करेंगे एनालाइजर के, एंड उसके बाद विल बी ऑल्सो डूइंग सम 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ओवर देयर, राइट. ठीक है, चलिए. और उसके बाद दिस मॉड्यूल विल बी क्लोज. वन मोर थिंग गाइज, आई हैव जस्ट स्टार्टेड दिस मॉड्यूल बट इट इज़ वेरी स्मॉल मॉड्यूल, सो मैं आपको बता देता हूँ इसके बाद हम कौन सा मॉड्यूल शुरू करेंगे. वी आर गोइंग अकॉर्डिंग टू द अकेडमी गाइज, ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से चल रहे हैं. तो विल बी गोइंग आरपीए टेस्टिंग विद द स्टूडेंट्स. जो भी यहाँ पे टेस्टर्स हैं उनके लिए एक बून है. इसके बाद हम ये वाला मॉड्यूल शुरू करने वाले. देखिए, ये टेस्ट सूट की तरह नहीं है. अगर आप सोच रहे हो कि ये आपका टेस्ट सूट की तरह है, तो नहीं, इट्स नॉट अ टेस्ट सूट, राइट. ये गिवन मैन देन वाली आपकी जो टर्मिनोलॉजीज हैं उसको यूज करेगा इसके अंदर जाके, राइट. प्रीटी कूल. सो गाइज, दिस वीडियो के लिए इतना ही, राइट. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब channel over there, right. Chali, thank you guys, happy automation, and as always keep learning.